Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Dear student, today I am going to teach you chapter 8 of your literature book. The name of the chapter is Leo Learns to Roar. Leo learns to roar. Today we'll revise this chapter because this chapter had completed before also. Today we'll revise this chapter. This chapter is narrated by Gerald Durrell. This chapter is narrated by Gerald Durrell, 1925 to 1995. Gerald Durrell was a British writer. He was a British writer born in India. ये एक ब्रिटिश राइटर है जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इंडिया में. As a child, he visited an Indian zoo. When he was a child, where did he visited? He visited an Indian zoo. And so began his love for animals. जब वो बच्चा थे तब वो एक बार इंडियन जू में गए और तभी से उनका क्या हो गया? एनिमल्स के प्रति प्यार बढ़ गया. As a child, he visited an Indian zoo and so began his love for animals. He opened up his own zoo to help save animal species that were in danger. Gerald Durrell, he opened up his own zoo. वो खुद का अपना जू खोल लिए. To save animals. क्यों खोले थे? To save animals species that were in danger. मतलब कि जो खतरे में जानवर या पक्षी होते थे उनकी मदद करने के लिए गेराल्ड डुरेल जो थे अपना खुद का जू खोल चुके थे. He also wrote humorous stories about his life with animals. Gerald Durrell, he also wrote humorous stories about his life with animals. My Family and Other Animals is his most famous book. उनके फेमस बुक का क्या नाम था? My Family and Other Animals. दिस इज हिज मोस्ट फेमस बुक. मतलब कि ये जो बुक है, ये जो दोनों बुक है, माई फैमिली और अदर एनिमल्स, ये दोनों बुक जो है इनका मोस्ट फेमस बुक है. नाउ डियर स्टूडेंट, वी विल रीड दिस चैप्टर. यू ऑल प्लीज लिसन केयरफुली. एज लियो लर्न्स टू रॉर. Gerald Durrell. Gerald Durrell was a famous conservationist. What is the meaning of conservationist? Someone who works to protect plants and animals. मतलब कंजर्वेशनिस्ट वैसे लोग को बोलते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. तो गेराल्ड डुरेल जो थे वो एक फेमस कंजर्वेशनिस्ट थे. कंजर्वेशनिस्ट मतलब क्या होता है? समवन हु वर्क्स टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल. तो आप जैसे कि मैं पहले बताई हूं कि गेराल्ड डुरेल जो थे वो अपना खुद का जू खोले थे. किस लिए खोले थे? ताकि वो एनिमल्स डेंजर में हो उनका हेल्प करने के लिए. तो गेराल्ड डुरेल जो थे वो एक फेमस कंजर्वेशनिस्ट थे. ही वाज अ जू कीपर एंड राइटर. क्या क्या थे गेराल्ड डुरेल? वो एक फेमस कंजर्वेशनिस्ट थे, जू कीपर थे और एक राइटर भी थे. ही ओपनड अ जू इन जर्सी where he bought and kept an amazing varieties of animal from different places. वो अपना खुद का जू खोले थे. कहाँ पे? जर्सी पे, जहाँ पे वो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के जानवर को लाकर वो रखते थे. He opened a zoo in Jersey where he brought and kept an amazing variety of animals from different places. वो क्या थे? मैं अभी बताइए आप लोग को कि गेराल्ड डुरेल जो थे एक फेमस कंजर्वेशनिस्ट थे, एक जू कीपर थे और एक राइटर भी थे. और वो अपना खुद का जू कहाँ पे खोले हुए थे? जर्सी में, जहाँ पे वो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स को वेयर ही ब्रॉट एंड कैप्ट एंड अमेजिंग वैरायटीज ऑफ एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. मतलब एक जगह की नहीं, वो डिफरेंट प्लेसेस से लाकर एनिमल्स को लाकर वहां पे रखते थे. He wrote about these animals and his experience of working with them in different books. He wrote, जैसे कि वो एक राइटर थे इसलिए वो क्या? He wrote about these animals, मतलब ये सारे एनिमल्स के बारे में वो लिखते थे
और अपने एक्सपीरियंस भी लिखते थे उन लोग के साथ काम करने का। किसमें लिखते थे? अपने डिफरेंट बुक में। He wrote about these animals and his experience of working with them in different books. Read on to find out about one special member of Durrell's Zoo. Now we'll read in this book about one special member of Durrell's Zoo. एक स्पेशल मेंबर, डुरेल के जू में एक स्पेशल मेंबर है, उसी के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Another newcomer was our lion. Who was a newcomer? A lion. Another newcomer was our lion who went by the time honored. Time honored मतलब क्या होता है? Respected because it has been used for a long time. मतलब कि honored मतलब कि किसी respected के लिए ही, respect देने के लिए ही honored लगाते हैं। तो ये राइटर जो क्या बोल रहे हैं कि हमारे जू में एक न्यू कमर आया। वो न्यू कमर कौन था? एक लायन था। Who went by the time honored name of Leo. क्या नाम था उसका? लियो। मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि इस चैप्टर का नाम ही है लियो लर्न्स टू रॉर। रॉर के साउंड ऑफ लायन इज रॉर। लायन का साउंड को क्या बोलते हैं? रॉर। तो राइटर जो बोल रहे हैं कि हमारे जू में न्यू कमर कौन था? लायन, और उसका क्या नाम था? लियो। ऑन हिज अराइवल ही वॉज ओनली अबाउट द साइज ऑफ ए स्मॉल डॉग। जब वो आया राइटर के जू में लियो, तो उसका साइज क्या हो रहा था उस टाइम? एक छोटा सा डॉग के बराबर, एक पप्पी के बराबर। ऑन हिज अराइवल ही वॉज ओनली अबाउट द साइज ऑफ अ स्मॉल डॉग एंड सो ही वॉज हाउस्ड इन अ केज इन द मैमल हाउस। क्योंकि वो एक छोटा सा कुत्ता का साइज का था जब वो आया था, इसलिए उसको कहाँ पे रखा गया? एक केज में। वो भी किसके केज में? इन द मैमल हाउस। ऑन हिज अराइवल he was only about the size of a small dog and so he was housed in a cage in the mammal house. But he grew so quickly that it was soon necessary to find him a bigger place to live. लेकिन वो इतना जल्दी बड़ा हो गया कि उसको बिगर प्लेस पे रखने का जरूरत हो गया, क्योंकि वो एक केज में रह रहा था जब वो छोटा था। लेकिन वो इतना जल्दी बड़ा हो गया, but he grew so quickly that it was soon necessary to find him a bigger place to live. जब वो बड़ा हो गया तो उसके लिए बड़ा सा जगह चाहिए। तो राइटर जो थे वो क्या बड़ा जगह ढूंढने लगे कि लियो को कहाँ रखा जाए। But he grew so quickly that it was soon necessary to find him a bigger place to live. We had just finished building a large cage for the chimpanzees and decided we would put Leo in that until we could build him a cage of his own. राइटर क्या बोल रहे हैं कि we had just finished building a large cage for the chimpanzee. क्या राइटर बोल रहे हैं कि हम लोग अभी तुरंत किसका केज, एक बड़ा सा केज किसका बनाए हुए हैं? चिंपांजी का। And decided we would put Leo in that. और क्या डिसाइड किए कि अभी जो हम लोग केज बनाया है चिंपांजी के लिए, उसी में हम लोग लियो को रखते हैं जब तक कि इसका खुद का केज न बन जाए। We had just finished building a large cage for the chimpanzee and decided we would put Leo in that until we could build him a cage of his own. So Leo was transferred and he settled down very happily. फिर क्या हुआ? लियो को उसी केज में, चिंपांजी वाले केज में डाल दिया गया और वो वहां बहुत खुश हो गया। सेटल डाउन वेरी हैप्पली। आई वॉज ग्लेड टू सी। राइटर जो बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश था उसको देखकर। वेन हिज मेन स्टार्टेड टू ग्रो दैट ही वॉज गोइंग टू बी अ ब्लॉन्ड लायन। जब उसका गर्दन के पास जब बाल निकलना स्टार्ट हो गया तो मैं बहुत खुश हो गया। और मैं क्या सोचा? ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड मतलब क्या होता है? येलो और गोल्डन। उस गर्दन के पास लायन का जो बाल होता है येलो और गोल्डन। तो जब मैं उसका बाल देखा गर्दन के पास तो मैं बहुत खुश हो गया और क्या सोचा कि वो एक ब्लॉन्ड लायन होने वाला है। ब्लॉन्ड मतलब क्या होता है? येलो और गोल्डन। फॉर इन माई एक्सपीरियंस द लायंस विथ ब्लॉन्ड मेन्स as opposed to dark ones have always nice and slightly imbecile character, मतलब कि stupid character। राइटर जो बोल रहे हैं कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जिस लायन का मेंस में क्या होता है, मतलब कि गर्दन का जो बाल होता है उसको बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि
राइटर बोल रहा है कि मेरे हिसाब से जिस लायन के गर्दन पे येलो और गोल्डन कलर का बाल होता है वो क्या होता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है, वो एक स्टूपिड कैरेक्टर का होता है. दिस हैज बीन फुली प्रूवन बाय लियोज बिहेवियर. और ये बात प्रूफ भी हो गया. कैसे प्रूफ हो गया? लियो के बिहेवियर से. लियो कौन है? लियो लायन है, जिसको अभी राइटर जो बोले कि हमारा न्यू कमर कौन है, लायन है. और लायन का क्या नाम था? लियो. और राइटर बोल रहे हैं कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जिस लायन के गर्दन पे येलो और गोल्डन कलर का बाल होता है उसका कैरेक्टर क्या होता है? स्टूपिड कैरेक्टर का होता है. और ये बात प्रूफ भी हो गया. कैसे प्रूफ हो गया? लियो के बिहेवियर से. He had in his cage a large log as a toy and a big black rubber bucket in which he received water. He had in his cage a large log. log मतलब क्या होता है? लकड़ी का जो गट्ठा होता है उसको बोलते हैं log. तो लियो के केज में क्या था? एक बड़ा सा गट्ठा था एज ए टॉय, जिसको वो टॉय समझता था. एंड अ बिग ब्लैक रबर बकेट, और एक बड़ा सा रबर बकेट था ब्लैक कलर का. इन विच ही रिसीव्ड वाटर, जिसमें कि उसको पानी मिलता था पीने के लिए. दिस बकेट फैसिनेटेड हिम. ये बकेट जो था, ये बिग ब्लैक रबर बकेट जो था, इसको अट्रैक्ट करता था. फैसिनेटेड मतलब क्या होता है? वॉज थॉट वेरी इंटरेस्टिंग बाय, मतलब वही अट्रैक्ट. ये जो बकेट जिसमें उसको पानी मिलता था पीने के लिए, वो बकेट जो था इसको अट्रैक्ट करता था. एंड आफ्टर ही हैड ड्रंक हिज फिल ही वुड नॉक ओवर द रिमेनिंग वाटर. और जब उसको पानी मिलता था उस बकेट में तो क्या करता था? जब वो पानी अपना पूरा पी जाता था, मतलब कि जब उसकी प्यास बुझ जाती थी तो क्या करता था? वो ना अपने पैर से मारकर जो पानी बचा हुआ होता था वो बकेट का पानी को क्या करता था? गिरा देता था. दिस बकेट फैसिनेटेड हिम एंड आफ्टर ही हैड ड्रंक हिज फिल ही वुड नॉक ओवर द रिमेनिंग वाटर. देन ही वुड पेट द बकेट विथ हिज ग्रेट पॉज मेकिंग इट रोल राउंड द केज. फिर क्या करता था? अपने पैर से धक्का देकर बकेट को रोल करता था, मतलब कि बकेट को धक्का देते देते बकेट रोल करते रहता था पूरे केज के राउंड में. देन ही वुड पेट द बकेट विथ हिज ग्रेट पॉज. पॉज मतलब क्या होता है? शेर का जो पंजा होता है, अपने पंजा से क्या करता था? बकेट को रोल करता था पूरे केज के राउंड में. देन ही वुड पेट द बकेट विथ हिज ग्रेट पॉज मेकिंग इट रोल राउंड द केज सो दैट ही वुड स्टॉल्क. स्टॉल्क मतलब क्या होता है? फॉलो समथिंग्स क्वाइटली इन ऑर्डर टू अटैक इट. So that he could stalk it and pounce on it. One day a lady stopped me to ask whether we had gotten Leos from a circus. ये दिन क्या होता है? एक लेडीज जो थी मुझे रोक ली और क्या पूछी कि क्या आप लियो को किसी सर्कस से लेकर आए हैं. आई वॉज पजल्ड. मैं जब उस लेडीज का बात सुना तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया. आई सेड नो. और फिर क्या मैं बोला कि नहीं, मैं इसको सर्कस से नहीं लाया हूं. एंड आस्क्ड हर व्हाई शी शुड थिंक सो. और फिर मैं उस लेडीज से पूछा कि आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछी कि लियो को मैं सर्कस से लेकर आया हूं. एंड आस्क्ड हर व्हाई शी शुड थिंक सो. तो लेडीज क्या बोलती है? बिकॉज शी रिप्लाइड ही वॉज डूइंग सच क्लेवर ट्रिक्स. क्या बोलती हैं लेडीज से जब राइटर पूछे कि आप क्यों पूछ रही हैं कि ये लियो को मैं सर्कस से लेकर आया हूं, तो लेडीज क्या बोलती है? बिकॉज ही वॉज डूइंग सच अ क्लेवर ट्रिक्स. बोलती है कि जो लायन है कितना क्लेवर ट्रिक्स कर रहा है अपने तरफ से. देखो इसका ट्रिक्स, हर काम में अपना ट्रिक्स निकालकर बहुत चालाकी से अपना काम को कर रहा है. आई डिस्कवर्ड दैट Leo had stuck the rubber bucket on his head. क्या बोल रही हैं कि मैं नोटिस कर रही हूं कि लियो जो है रबर बकेट को अपने सर के ऊपर रख लिया है. एंड was walking round and round the cage proudly wearing it like a hat. और क्या कर रहा है? वो बकेट को अपने सर पे पहन लिया है और केज के राउंड राउंड घूम रहा है और एकदम प्राउडली चल रहा है जैसे कि वो एक हैट पहना हुआ है सर पे. He was doing such clever tricks. I discovered that Leo had stuck the rubber bucket on his head and was walking round and round the cage proudly, wearing it like a hat.
In his second year, after giving it a lot of thought, Leo decided that it was a lion's duty to roar. फिर क्या होता है, इन his second year, जब वो उसका दूसरा साल था, आफ्टर गिविंग इट अ लॉट ऑफ थॉट, मतलब कि उसको बहुत कुछ सिखाया गया, फिर लियो क्या डिसाइड करता है कि लायन का ड्यूटी क्या होता है, रॉर, मतलब गरजना. लियो डिसाइडेड दैट इट वाज अ लायंस ड्यूटी टू रॉर. ही वाज नॉट श्योर how to go about it, so he would go to the quiet corners of the cage and practice. लेकिन क्या होता है, वो सोचता है कि लायन का ड्यूटी होता है रॉर करना, लेकिन उसको इसमें कुछ आता नहीं था और वो ना सबके सामने प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था. इसलिए क्या करता था, केज के एक कॉर्नर में चला जाता था और वहां पे वो प्रैक्टिस करता था. सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, ही वॉज रेदर शाई मतलब शर्माना, उसे थोड़ा शर्म लगता था. इसलिए If you came close, he would stop roaring immediately and act as if it had nothing to do with him. वो थोड़ा शर्माता था, इसलिए जब वो प्रैक्टिस करता था रॉर करने का, तो क्या अगर उसके पास कोई चला जाता था तो अचानक से रुक जाता था और ऐसा एक्टिंग करता था जैसे कि उसको इससे कुछ मतलब ही नहीं है. When he was satisfied that he had gotten it perfect, he treated us to be his first concert. जब उसको सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं अब मुझे आ गया अच्छे से गरजना, तो अपना फर्स्ट कंसर्ट, अपना फर्स्ट शो दिखाता है. इट वॉज अ वंडरफुल मूनलाइट नाइट व्हेन ही स्टार्टेड. कैसा रात था उस दिन, बहुत ही अच्छा रात था, मूनलाइट नाइट था, मतलब कि उस दिन चांदनी रात थी. वी आर ऑल डिलाइटेड दैट लियो वॉज एट लास्ट अ प्रॉपर लायन. हम लोग बहुत खुश थे कि चलो अब लास्ट ही सही, लेकिन लियो जो है एक प्रॉपर लायन हो चुका है. A lion roaring sounds just like someone sawing wood on a gigantic. Sawing मतलब जब लायन जब लियो गरजना स्टार्ट करता है तो उसका साउंड कैसा आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि कोई लकड़ी को काट रहा है आरी से. A lion roaring sounds just like someone sawing wood on a gigantic echoing barrel. Echoing मतलब repeating the sound mad. The trouble was that Leo was so proud of his accomplishment. लेकिन बात ये होता है कि लियो इतना घमंड में हो जाता है अपने काम को देखकर, that he could not wait until nightfall to begin. He started roaring earlier and earlier each evening. क्या वो हर शाम को क्या करता था, गरजना स्टार्ट कर देता था. He would keep it up all night. पूरे रात वो यही करता था. With 5 minutes break for meditation between each roar. हर गर्जन के साथ वो 5 मिनट रुकता था मेडिटेशन करने के लिए, फिर वो स्टार्ट हो जाता था पूरे रात. सम टाइम व्हेन ही वाज इन पर्टिकुलरली गुड वॉइस, यू कुड इमेजिन दैट ही वाज सिटिंग ऑन द एंड ऑफ योर बेड सिंगिंग टू यू. कभी कभी जब उसका साउंड कुछ ठीक होता था तो क्या ऐसा लगता था जैसे कि वो हमारे बेड के किनारे ही बैठा हुआ है. वी ऑल बिगेन टू बी समवॉट टायर्ड. वी फाउंड दैट इफ वी ओपन द बेडरूम विंडो एंड शाउटेड लियो शट अप. क्या होता है, बोल रहे हैं राइटर बोल रहे हैं कि जब हम लोग कभी आराम करने जाते थे और लियो अपने मूड में होता था कि नहीं मुझे गरजना है, तो उसका साउंड लगता था जैसे कि बहुत ही गंदा साउंड, और हम लोग खिड़की से खोलकर क्या कहते हैं, नाउ लियो प्लीज शट अप, स्टॉप रॉरिंग. दिस हैड द इफेक्ट ऑफ साइलेंसिंग हिम फॉर एन हाफ एन आवर. जब हम लोग उसको डांटते थे तो आधे घंटे के लिए तो रुक जाता था, but at the end of that time he would decide that you had not really meant it. लेकिन वो ना बात को अनसुना कर देता था, जैसे कि उसके लिए ये बात का कोई वैल्यू ही नहीं है. and would start all over again, और फिर से वो स्टार्ट कर देता था अपना गरजना. It was a very trying time for us. मतलब कि ये टाइम जो था हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्टी टाइम था उसका साउंड को सुनना. Now Leo has learned to roar with a certain amount of care. अब लियो को एट लास्ट रॉर गरजने तो आ गया, बट इवन सो देयर आर नाइट, स्पेशली एट फुल नाइट, व्हेन ऑल यू कैन डू इज पुट द पिलो ओवर योर हेड एंड कर्स द डे यू डिसाइडेड यू वांटेड अ जू. लेकिन अब तो लियो सीख गया है रॉर करना, लेकिन उस दिन को याद करते हैं स्पेशली फुल मून नाइट के दिन, और सोचते हैं कि पिलो लो और अपने कान को दबाओ और सो जाओ. नाउ डियर स्टूडेंट, योर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. Your homework is to learn the question answer of this chapter and also the word meaning of this chapter. Thanks. Have a nice day.